So next question, define secondary data, state the chief sources and point out the dangers involved in their use and what precautions are necessary before using them. अब secondary data की बात हो गई. Secondary data क्या है? Primary data, as we know that this is the first hand information that is collected from the primary source. एकदम basic first hand है. Secondary जो already collected है उसको अपने use कर रहे हैं. The secondary data are such statistical information which have already been collected by someone for his own purpose and are now available for use by others for their purposes. तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पहले कलेक्ट किया, अब उसको कॉर्पोरेट्स यूज कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूज कर रहे हैं फॉर देयर ओन पर्पसेस. Indeed, numerical data which are not gathered directly from the field of inquiry but are merely compiled from other sources are referred to as secondary data. The secondary data is nothing but it is already gathered somewhere. It is now we are just compiling those data. ठीक है, compiling and using it. वो हुआ secondary data. Chief sources क्या है? Official publication of state and central governments, foreign governments and international bodies such as UNO, ILO, ये सारे collect करते हैं data. Publication and reports of trade association, chamber of commerce, cooperative societies, etc. Journals and magazines published by private agencies, reports of committees and commissions of inquiry, unpublished reports prepared by research scholars, labor and trade union. ये सारे हो गए. One must be very, ये secondary data के sources, कहाँ से हम ये data compile कर सकते हैं. Chief sources, secondary data हमको कहाँ से मिलेगा? ये तो primary data इसी से हम लेंगे ना. ये प्राइमरी डेटा का सोर्स है. ये चीफ सोर्सेज ऑफ डेटा बोल रहे हैं हम लोग. सेकेंडरी डेटा मतलब क्या? कहीं से चुराया हुआ डेटा. तो ये प्राइमरी डेटा प्रोवाइड करते हैं इन लोग, यहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं, वही है. ठीक है. और कुछ कुछ तो सेकेंडरी भी, जैसे ये सारे जो है कंपाइल करके देते हैं, सेकेंडरी भी तुमको मिल जाएगा यहाँ पर. ठीक है. वन मस्ट बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग सेकेंडरी डेटा बिकॉज ऑफ देयर मेनी लिमिटेशन. तो नॉर्मल सी बात है, सेकेंडरी या प्रोसेस्ड है तो इसमें लिमिटेशन है. फॉर एग्जाम्पल द डेफिनेशन एंड कवरेज ऑफ द टर्म्स एंड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मे नॉट क्वाइट अग्री विद दोज रिक्वायर्ड बाय द यूजर. ठीक है, जितना यूजर को चाहिए उतना नहीं है. द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सच डेटा मे ऑल्सो बी डिफरेंट. समटाइम्स द अवेलेबल सेकेंडरी डेटा मे बी मियर एस्टिमेट्स एंड नॉट फैक्ट्स. कभी कभी जो सेकेंडरी डेटा है वो खाली एस्टिमेट भी होता है, एक्चुअल में नहीं होता है. एग्जिट पोल. The method employed for the collection of data may not be satisfactory. Secondary data in most cases contain errors due to transcription, rounding off, etc. ठीक है. Detailed scrutiny of secondary data is therefore extremely essential before putting them into use. Proper scrutiny करना है ना. The user must satisfy himself with the scope and object of inquiry for which the data were originally collected. Method of collection, time and area covered by the data, precise definition of the terms used, extent of accuracy and data and the integrity and experience of authority who collected this data. तो जो मैंने जो इसको यूज करने वाला उसको वही सब चीजें देखना चाहिए. पॉपुलेशन और यूनिवर्स एंड सैंपल, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. पॉपुलेशन और सैंपल. पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन मतलब हो गया कंप्लीट, टोटलिटी जो हो गया. द टोटलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर from all members covered by an inquiry is called population or universe. Population और example दिखाती हूँ तुमको. जैसे ये ले लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सपोज मैं ले रही हूँ, ये मेरा टोटल पॉपुलेशन है कोई भी एक चीज का. मैं मान के चल रही हूँ कि एज ग्रुप जो है कोलकाता में, टोटल एज ग्रुप समझ लो कि टोटल एज ग्रुप जो है एज ग्रुप 60 प्लस, इसमें टोटल 1 करोड़ लोग हैं. ठीक है, 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ पीपल एग्जिस्ट. ये मेरा टोटल कोलकाता का मैंने लिया है, कलेक्ट किया. ठीक है, 60 प्लस. अब देखो 1 करोड़ लोग जो है, ये मुझे क्या जानना था, कोलकाता में कितने एज ग्रुप है 60 प्लस के लोग. तो ये मेरा टोटल पॉपुलेशन है 1 करोड़ विच आई कलेक्टेड फ्रॉम एनी सर्वे या कहीं से मुझे पता चल गया. तो मेरा टोटल जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़. पर जब मैं सर्वे करने जाऊंगी या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है या कुछ इस पे काम करना है, तो एक एक जन को पकड़ पकड़ के काम करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका सैंपल लेते हैं, सैम्पलिंग करते हैं.
छोटा सा पार्ट। सैम्पलिंग का बहुत तरीका है, उस पर मैं नहीं जा रही हूँ। सैम्पलिंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इनमें से ही कुछ लोगों को लिया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे उनको लिया जाएगा, ठीक है। अब वो कोई भी, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, लाइक रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, दैट विल गो एड फर्दर। तो ये जो सैम्पलिंग में क्या होगा, सैम्पलिंग जो ये सैंपल है, ये हो गया मेरा टोटल पॉपुलेशन, दिस इज पॉपुलेशन और यूनिवर्स बोलते हैं हम, क्योंकि पूरा है ये, टोटल है मेरा, टोटल डेटा। अब यहाँ जो ये सैंपल है, सैंपल इज सिंपली जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सैंपल जो कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, इट इज मैंने इट विल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे अब मुझे कोई ओल्ड एज होम का अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कि मैं ओल्ड एज होम एक तो स्टार्ट करूँ, वो लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करूँ और एनीथिंग, ऐसा तो बहुत सारा बिजनेस है ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली मुझे सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं एक एक जन के मैंने एक 60 साल के ऊपर के लोगों के पास जाऊं और सर्वे करूं। तो मैं क्या सैंपल निकाल लूंगी, जैसे मैंने रैंडम ले लिया, कुछ 60+ के लोगों को सेलेक्ट किया, उन लोग का इंटरव्यू ली। तो ये जो सैंपल जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से आएगी, वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ का। अब जितना ज़्यादा सैंपल हो जाता है उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, एक्सपेक्टेड है। सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो एक्यूरेसी वो प्रोवाइड करती है, इतना एक्यूरेट है, ठीक है। यस, टोटलिटी ऑफ डेटा और एनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर है, ठीक है। और सैंपल इज सिंपली रिप्रेजेंटेटिव, उसका पार्ट है। यस, सैंपल इज सिलेक्टेड ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट एन्यूमरेशन और सेंसस एंड सैंपल सर्वे, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कंप्लीट एन्यूमरेशन और सेंसस मेथड, मतलब सेंसस मेथड में एक एक जन को अपने सिलेक्ट करते हैं, एक एक जन का हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो कंप्लीट सर्वे हुआ, कंप्लीट एन्यूमरेशन बोल सकते हैं। हाँ, वहाँ पे हम एक एक जन का इंफॉर्मेशन लेते हैं, लाइक सेंसस ऑफ पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो एकदम कंप्लीट एन्यूमरेशन है। वहाँ पर पूरा एक एक जन को पूछा जाता है, एक एक जन के बारे में डिटेल्स दिया जाता है, वो कंप्लीट एन्यूमरेशन है। और सैंपल सर्वे में बस सैंपल लेंगे, वहाँ पे उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो, एंड कंप्लीट एन्यूमरेशन